اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری بات ہونی ہے کتاب القضاء میں۔ یہ احکام آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے مولانا روزے کے متعلق، کہ اگر کسی پر واجب روزہ ہے تو اس کے لیے مستحب روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ صحیح ہے، مثال کے طور پر رمضان کا چھوٹا ہو 13 رجب کا روزہ رکھے ہو جائے گا؟ نہیں، چونکہ پہلے جو اس پر واجب ہے اس واجب کو کیا کرنا ہے، اسے ادا کرنا ہے۔ نہیں، دونوں کی نیت، کس کی نیت کرنی ہے؟ واجب کی ہر حال میں کرنی ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ اس واجب کو ادا کرنے کے لیے آپ نے اس مخصوص دن کا انتخاب کیا ہے کہ جس میں اللہ نے روزے کو ثواب دیا ہے، تو نیت تو آپ کے قضا کی ہوگی، لیکن اس قضا کو آپ عام دنوں میں بھی ادا کر سکتے تھے۔ جائے کہ آپ نے کہاں ادا کیا اس کو؟ 27 مبعث رسول میں کیا۔ صحیح ہے، آپ نے اس دن کو چنا، دہ الارض کو چن لیا، تو اس کا ثواب اپنا بہرحال رہے گا، لیکن بہرحال اس کے لیے مستحب روزہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اب ایسا انسان، مولانا یہاں جو مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ کسی پہ واجب روزہ ہے، ارے واجب نمازیں ہیں چھوٹی ہوئی، واجب نمازیں چھوٹی ہیں، تو آیا وہ مستحب نمازیں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ صحیح ہے، یعنی یہاں جو نافلتے وفی جواز النافلتی لمن علیہ فریضۃ قولان، صحیح ہے، اور نافلہ کے جائز ہونے میں اس پر کہ جس پر کیا ہے، واجب نماز ہے۔ تو یہاں مسئلہ کس کے بارے میں ہے؟ مسئلہ ان کے بارے میں کہ جن پر قضا نماز ہے، کیا وہ نافلہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہاں مولانا، نماز شبھی کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر پتہ چلا 2 سال کی خود کی چھوٹی ہوئی ہے، تو پہلے اس کو ادا کرے کہ نافلہ پڑھتا رہے؟ کہنے وفی جواز النافلتے، اور اس نافلہ کے جائز ہونے میں، لمن علیہ فریضۃ، جس پر کیا ہے، واجب نماز ہے، قولان عند المصنف، عند المصنف بڑھا لیں تو قولان، تو دو قول ہے مولانا، یہاں پڑھیں اقربہما میں بڑھائیں مولانا، نشان اس کا اقربہما میں کر دیں۔ عند المصنف اقربہما الجواز، اور مصنف کے نزدیک ان میں سے زیادہ صحیح قول کس کا ہے؟ جائز کا ہے، کہ اگر کسی پر قضا نمازیں ہیں تو اس صورت میں بھی وہ نافلہ نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ کیوں مولانا؟ کس وجہ سے؟ کہا للاخبار، ان روایتوں کی وجہ سے۔ الدالۃ علیہ، جو دلالت کرتی ہیں، علیہ یعنی علی الجواز، جو دلالت کرتی ہیں جواز پر۔ فی کتاب، ہاں، وقد بینا مأخذہ، اور ہم نے اس کے ماخذ کہتے ہیں منبع مولانا، جہاں سے وہ روایتیں آئی ہیں، مأخذ الجواز لکھ لیں، ہاں کی ضمیر کدھر چلی جائے گی؟ جواز کی طرف۔ وقد بینا مأخذہ، یعنی مأخذ الجواز فی کتاب الذکرہ، اور ہم نے جواز کے مأخذ کو بیان کیا ہے کتاب ذکرہ میں، بے ایراد ما ورد فیہ، یعنی فی الجواز،
लाते हुए उन रिवायतों को जो जवाज के बारे में वारिद हुई हैं। बेईरादे मा वरद फीही यानी फिल जवाज मिनल अखबारे खबरों में से, कहा रिवायतों में से वो रिवायतें कि जो बाकायदा जवाज पे दलालत करती हैं उसको हमने शामिल किया है। वहर्ररना नहनु मा फीही फी शरहिल इरशाद, वहर्ररना नहनु और हमने उसको उस पे शरह लिखी, उस पे एतराज किया मौलाना। माफी ही यानी माफिल जवाज, उन रिवायतों में जो जवाज के ऊपर हैं। कहा एतराजात वारिद किए हैं? फी शरह इरशाद, किताबे शरह इरशाद में। शहीद सानी कह रहे हैं कि वहर्ररना नहनु माफी ही यानी फिल क्या जवाज फी शरह इरशाद। वस्तनदल मानिउ अयदन इला अखबार दल्लत अला नही, वस्तनदल मानिउ अयदन, सही मौलाना। कहा जिन लोगों ने मना किया है, मना करने का मतलब क्या, जिन लोगों ने कहा है कि जिस पर वाजिब नमाज है उस पर जायज नहीं है कि नाफिला नमाज पढ़े, यानी ये उनके कौल के हैं। ये तो अक़रबुहुम जवाज कहा था ना मौलाना ऊपर मुसन्निफ के नजदीक। लेकिन वो लोग जो क्या करते हैं, मना करते हैं, एतराज करते हैं कि नहीं उसके लिए मुस्तहब नमाज पढ़ना सही नहीं। वस्तनद अलमाने ऐदन का जो लोग मना करते हैं उन्होंने भी इस्तेनाद किया है इला अखबार दल्लत अला नहीं, उन रिवायतों पर जो नहीं पर दलालत कर रही है। अब मौलाना क्या करेंगे, हल क्या है इसका? है? इसका हल है, एक रिवायत ऐसी है आपके पास कि जो जवाज पे दलालत कर रही है, कुछ रिवायतें ऐसी हैं जो मना पे दलालत कर रही हैं। तो जवाज की रिवायत को मना की रिवायत को जब जमा किया जाएगा तो किस पे हमल करेंगे, कराहत पे। यानी ऐसा शख्स, क्या नतीजा निकलेगा मौलाना, यानी ऐसा शख्स के जिस पे कजा नमाजें वाजिब हैं उसके लिए मुस्तहब नमाजें पढ़ना क्या है, मकरूह है। आए समझ में? आइए वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, वहम्लुहु यानी हम्लुन नहीं, और नहीं को हमल किया जाएगा अलल कराहते, कराहत पर, तरीक़ल जमा, यही जमा का तरीका है मौलाना। वरना वो रिवायतें जो जवाज पे दलालत कर रही हैं, वो रिवायतें जो नहीं पे दलालत कर रही हैं, दोनों को कैसे जमा किया जा सकता है, का कराहत पे जमा करेंगे। नअम युअतबरु अदमु इज़रारिहा यानी इज़रार नाफिला, बिल फरीज़ा। हाँ मौलाना, एक शर्त के साथ। देखिए, अगर इंसान नमाज शब के लिए उठ रहा है, नमाज शब पढ़ के सो रहा है, लेकिन उस नमाज शब की वजह से उसकी सुबह की नमाज छूट जाए, तो फरीजा पे जरर आया या नहीं आया? नहीं है, वो वाजिब थी, वो मुस्तहब। ऐसी चीज, या हम इतनी नमाजें पढ़े, पता चला कि नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, और फिर ऐसे थक गए कि न जोहर की नहीं पड़ी, सोते रह गए, सोते रहे, सोते रहे, मगरिब के बाद आप पढ़ी। तो कहा ऐसी नाफिला का पढ़ना अगर है, शर्त यह है कि फरीजे को कोई जरर नहीं होना चाहिए, तब तो मकरूह पे हमल करेंगे। अगर फरीजे पे जरर आ जाएगा तो फिर जायज ही
नहीं होगी। समझ में आया मौलाना अली असगर साहब कबीला? क्या समझे? हाँ, फिर नाफिला का पढ़ना कज़ा होते हुए जायज, जरर पहुंचेगा तो जायज ही नहीं है। हाँ, जरर के बगैर मकरूह रहे। नआम युतबर अदम इजरारहा, यानी अदम इजरार नाफिला। हाँ, एतबार किया जाएगा कि नाफिला नुकसान न पहुंचाए बिल फरीदा, किसको? फरीजे को, यानी नाफिला से फरीजे को नुकसान न पहुंचे। अब मौलाना ये फरीजा नाफिला कौन सी? कहा वला फर्क, आया ज़वात असबाब या बिना असबाब वाली भी? कहा वला फर्क बैन ज़वातिल असबाबी व गैरिहा, बैन अन यकून नवाफिलो, बैन अन यकून, बैन के बाद लिख लें अन यकून नवाफिलो ज़वातिल असबाबी व गैरिहा, कि इसमें कोई फर्क नहीं है कि जो नाफिला नमाजें हैं वो सबब वाली हैं या बिना सबब की। सबब और गैर सबब का मतलब समझते हैं? क्यों गुलाम अली, क्या मतलब? नहीं नहीं, पंजगाना के अलावा भी सबब की होती है। जैसे तहिया मस्जिद सबब है, तहिया मस्जिद क्या है? सबब है। ज़ियारत इमाम हुसैन की नमाज सबब है, ठीक है ना? और किसी तरह अगर और ले लेंगे आप, हैं? वो तो वाजिब है, नमाज तवाफ वाजिब। ज़वात असबाब, चलिए बहरहाल। तो अरे शुक्राने की नमाज है, हदिया वालिदैन की नमाज है, हैं? वही सबब है, आपको वालिदैन को हदिया करना है, सबब नहीं है। नहीं, एक है बिना सबब के आप खड़े हुए हो नमाज में पढ़ना हो, दो रकात कुर्बतैन रहेगा, नहीं मकरूह के लिए ऐसे नहीं मकरूह है, उसके औकात हैं। हाँ, उनमें मकरूह होगी, ऐसे नहीं मकरूह है, पढ़ सकते हैं। आप दो रकात पढ़ के आप हदिया करना चाह रहे हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करेंगे, ठीक है? जैसे आप रियाजुल जन्ना जा रहे हैं, आपको मिल रहा है 10 मिनट मिला रियाजुल जन्ना जो मस्जिद नबवी में, जहाँ पे क्या है, माँ बैन कब्री व मिंबरी रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना, मेरे कब्र और मिंबर के दरमियान रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना, जन्नत के टुकड़ों में से एक क्या है? टुकड़ा है। आपको नमाज पढ़ने का मौका मिला तो आप क्या क्या पढ़ेंगे? ठीक है, एक तहिया मस्जिद पढ़ ली, दो रकात हदिया कर दिया रसूल खुदा को, और क्या करें? 10 मिनट आपको वहां गुजारना है, 15 मिनट गुजारना है। हमने तो स्लॉट लिया था, रात का लिया था, रात का लिया तो मसला नहीं, उसमें क्या किया, नमाज शब पढ़ी, दो रकत से, दो रकत मसलन क्या करेंगे, बता रहे हो क्या करेंगे? अपनी तरफ से दो रकत पढ़ के अदिया किया, अपने वालिद की तरफ से अदिया करो, दो रकत अपने वालिदा की तरफ से करो, भाइयों की तरफ से करो। तो हमें ये कर सकते हैं, दो दो रकत पढ़ के आप क्या करते रहे, अगर कोई वक्त नहीं है नमाज का, चाहिए भाई, रात का वक्त है तो आप नाफिला पढ़ सकते हैं, जोहर का वक्त है आप जोहर असर पढ़ सकते हैं। गैर वक्त में अगर आपको वक्त मिल रहा है तो क्या करेंगे, दो दो रकत पढ़ के आप सबकी जानिब से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करते रहेंगे। तो कह रहे हैं वला फर्क बैन अन यकून ज़वातुल अस्बाबी, कह रहे इसमें कोई फर्क नहीं है कि वो नाफिला क्या हो मौलाना, सबब वाली हो, सही है, वगैरहा, वगैर ज़वातिल अस्बाब, या सबब वाली न हो। इस तरह से 8वीं फसल जो हमने शुरू की थी वो तमाम हुई। अब आइए अपने कदम को हम बढ़ाते हैं अल फसल तासे की तरफ। अल फसल तासे, नवी फसल फी सलातिल खौफ, किसके बारे में मौलाना?
खौफ के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा नमाज खौफ किसको कहते हैं मौलाना? वो जो शदीद खौफ जंग वगैरह में पढ़ी जाए, इंशाअल्लाह उसको जानेंगे। और आइए, वहिय मक़सूरतुन सफरन इजमाअन व हदरन अलल असह्हि लिन्नस। वहिय मक़सूरतुन, और ये नमाज कसर है, सफरन सफर की हालत, इजमाअन यानी इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। यानी कसर में क्या करते हैं मौलाना? मगरिब की 1.5 रकत हो जाएगी, सुबह की 1 रकत हो जाएगी। क्यों गुलाम अली? हाँ, ये सिर्फ कसर होगी कौन सी? 4 रकाती नमाजें। ये 4 रकाती नमाजें 2 की क्या हो जाएंगी? अरे 4 की 2 हो जाएंगी। वहदरन अलल असही, कहा सफर में तो कोई मुश्किल ही नहीं मौलाना, है? जंग अगर ऐसी इतनी दूरी पे हो रही है कि जहां आमद और रफ्त कितनी हो रही है आपको? 4 फरसख है, 44 किलोमीटर है, सही है। ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा? नमाज आपकी कसर है। कहा लेकिन अगर घर में जंग हो रही है, क्या तब भी आपको नमाज कसर रहेगी? कहा इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है ना? दो राय हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन हुआ मकसूरतुन कहेंगे मौलाना, यहाँ वाव के बाद क्या बढ़ा देंगे? वह मकसूरतुन हजर, और हजर में भी वो क्या होगी? कसर होगी। अलल असहे, सही कौल की बिना पे, लिन्नस से, नस की वजह से। अगले पेज पे आइए मौलाना, नहीं आ जाइए। वह हुज्जतु मुश्तरितु, वल वल हुज्जतु, वह हुज्जतु मुश्तरिति सफरी बिदाहिरिल आया। वहुज्जतु मुश्तरिति सफर बिदाहिरिल आया, कह रहे उनकी दलील के जो सफर को, सफर की शर्त को यकीनी जानते हैं, वो आयत के जाहिर से। उनकी दलील क्या है मौलाना? आयत का जाहिर, यानी समझ में आया? देखिए मौलाना, नमाज खौफ कसर है, सफर में तो समझ में आता है, लेकिन जिन लोगों ने हजर में भी कहा है कि हजर में भी शर्त है, तो वहां पे उसके मुकाबले में कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं नहीं, सफर में ही सिर्फ शर्त है। और उनकी दलील क्या है? आया कुरानी। आइए नीचे देखिए, आया कुरानी दी हुई है, यहाँ नहीं दी, यहाँ ऊपर दी हुई है। ये रहा मौलाना, कहाँ गया? वइज़ा ज़रबतुम फिल अर्ज़ि फलैसा अलैकुम जुनाहन अन तक़्सुरू मिनस सलाति इन खिफ्तुम अन यफ्तनिकुमुल लदीना कफरू। अब यहाँ पे देखिए, वइज़ा ज़रबतुम फिल अर्ज़ि, यानी जब तुम जमीन पर कहीं जाओ, फलैसा अलैकुम जुनाहुन, तो तुम पर जरूरी है, यानी तुम्हारे लिए हरज नहीं है, अन तक़्सुरू मिनस सलात, कि तुम नमाज को कसर करो, इन खिफ्तुम, अगर तुम्हारे अंदर क्या हो? खौफ हो। तो यहाँ खौफ शर्त हो गई कि नहीं हो गई? ज़रबतुम फिल अर्ज़ करीना हो गया सफर का। तो आया क्या सिर्फ सफर, सिर्फ सफर काफी है कसर के लिए? आयत क्या कह रही है? अन तक़्सुरू मिनस सलाती इन खिफ्तुम, कि तुम नमाज को कसर करो अगर तुम्हें क्या हो? खौफ हो। तो सफर के साथ क्या हो गया? खौफ। यहां नोट लगाइए, नोट लगाइए। आयत में
आयत करीमा में कसर का सबब, आयत करीमा में कसर का सबब सफर और खौफ दोनों है। सफर और खौफ दोनों है। लिखा। तो जब सफर हो और खौफ ना हो, तो जब सफर हो और खौफ ना हो, क्या लिखा बेटा? और खौफ ना हो तो क्या नमाज कसर होगी या नहीं? तो नमाज कसर होगी या नहीं? तो इस सूरत में नमाज पूरी, इस सूरत में नमाज पूरी। इसी तरह अगर खौफ हो सफर ना हो, इसी तरह खौफ हो और सफर ना हो तो भी नमाज कसर नहीं होगी। आयत के मुताबिक यही तो है मौलाना। कि तनहा सफर काफी नहीं है और तनहा खौफ काफी नहीं, सफर भी हो और खौफ भी हो। इसी आयत के, हाँ रुक जाइए पहले इसको, तो नमाज कसर नहीं होगी। तो आयत के मुताबिक कसर नमाज के लिए सफर और खौफ दोनों का होना जरूरी है। और इसकी रद्द जो मौलाना है, इसकी रद्द आई है बाकायदा कि इंसान यानी नस से सही, एक सही नस जो सिर्फ क्या कह रही है सफर को, और एक सही नस जो सिर्फ क्या कह रही है खौफ को। ठीक है, उन दोनों के जरिए से हम क्या कर सकते हैं मौलाना? सही है कि सिर्फ अगर खौफ है, भले सब हजर में है तब भी नमाज कसर हो जाएगी, सिर्फ अगर सफर है खौफ नहीं है तब भी नमाज कसर हो जाएगी। हाँ, वो हुज्जतु मुश्तरति सफरी बिज़ाहिरिल आया। तो जो सफर की, सफर में दलील है, सही है, और शर्त लगाई जा रही है वो आयत का जाहिर है। हैसु इख्तदत अल जमउ, हैसु इख्तदत अल जमउ, जमा के बाद लिख लें बैन सफर वल खौफ, जैसा कि वो तकाजा कर रही है, जैसे कि वो तकाजा कर रही है।
کہ قصر کے لیے سفر اور خوف دونوں کے درمیان دونوں ساتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں مندفعۃ بالقصر للسفر المجرد عن الخوف. صحیح ہے. والنص محکم فیہما. یہاں پہ دیکھیے مولانا سمجھیے، کہہ رہے مندفعۃ بالقصر للسفر المجرد. کہہ رہے ہیں اس جمع کو مولانا کیا کریں گے ہم، اس کی رد کریں گے اس قصر سے جو صرف اور صرف سفر کی وجہ سے ہو، جس میں خوف نہ ہو. والنص محکم فیہما، اور نص اس میں حکم لگائے گی فیہما یعنی فی السفر والخوف. دو اور چار نمبر کے حاشیے پہ آئیے دیکھ لیتے ہیں مولانا. ہاں فیکون، جب وہاں پہ نص رہے گی فیکون ذکر الخوف فی الآیت لغوا. ذکر ہے نیچے تمہارے یہاں نہیں ہے. وهذا ما لا يمكن الالتزام فيتعين أن يكون المدار على الخوف، وقد ذكر السفر من باب الغالب لأن الخوف غالبا إنما يكون في السفر. صحیح ہے کہ انہوں نے قرینہ یہ نکالا کہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے مولانا، خوف کب غالب آتا ہے، حضر میں کہ سفر میں؟ سفر میں ہے نا. جب انسان اپنے وطن میں ہے تو پھر اس پہ خوف غالب نہیں آتا. اور کون سا میں نے کہا تھا مولانا، تین جمع چار. یہاں تین وہ صحیح ہے تو زرارہ المتقدم، پیچھے کوئی زرارہ کی حدیث گزری ہے. ہاں یہ رہا مولانا، صحیح زرارہ المتقدم عن ابی جعفر علیہ السلام قلت له صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا. صحیح ہے، یعنی پوری حدیث ہے مولانا، صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا، کہ صلاة خوف اور صلاة سفر کیا دونوں جو ہیں کیا کی جائیں گی، قصر کی جائیں گی. قال نعم، تو آپ نے کیا کہا، ہاں. وصلاة الخوف احق ان تقصر من صلاة السفر، کا نماز خوف کا زیادہ حق ہے کہ اسے قصر کیا جائے سفر سے. لأن فيها خوفان، کہ اس میں خوف بھی پایا جاتا ہے. وهو مطلق يشمل صلاة الخوف في الحذر، اور کہاں یہ مطلق آیا ہے اور اس میں حذر میں بھی اگر خوف کسی پہ طاری ہو رہا ہے تو اس میں بھی کیا ہو جائے گا، نماز کو قصر کیا جائے گا. صحیح ہے. وَإِطْلَاقُ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ يَقْتَضِي صِحَّةَ صَلَاةِ الْخَوْفِ جَمَاعَةً مُفْرَدًا، کہ آیت کا مطلب ہونا اور خبر کا مطلب ہونا دونوں اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ نماز خوف چاہے جماعت سے ہو یا فرادہ ہو، وہ نماز قصر کی جائے گی. انشاءاللہ اس گفتگو کو کل ہم لوگ آگے بڑھائیں گے. والحمدللہ رب العالمین.